بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں بیان کروں گا رمضان اور روزہ، انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے 2 ہجری میں فرض فرمائے۔ یہ شریعتاً تھوڑی تھوڑی نازل ہوتی رہی ہے۔ ابتدا میں روزے کی فرضیت کی کیفیت وہ حالت آج سے زیادہ مشقت طلب اور شدید تھی، کیونکہ لوگوں کو ابتدا میں اس وقت سے روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا جب وہ عشاء کی نماز پڑھ لیں یا نماز عشاء سے قبل سو جائیں۔ بہرحال اس طرح کے روزے میں بڑی مشقت تھی۔ ایک آدمی اپنی عورت کے پاس مباشرت کے لیے آیا تو اس عورت نے کہا، میں نے عشاء کی نماز پڑھ لی ہے اور روزے کی نیت کر لی ہے، اس لیے جو تم چاہتے ہو وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے۔ اس آدمی نے اپنی عورت کو جھوٹا قرار دیا، اس خیال سے کہ وہ اسے بے سبب اپنے سے دور رکھنا چاہتی ہے۔ بہرحال اسی طرح ایک آدمی نے پانی سے روزہ افطار کیا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ اس کی عورت اس کے لیے کھانے کی تلاش میں گئی۔ جب وہ کھانا لے کر آئی تو اس کا شوہر سو چکا تھا اور اس پر روزہ فرض ہو چکا تھا۔ عورت نے اس سے کہا کہ بڑا افسوس ہے کہ تم نے بھوک کی حالت میں افطار کیا اور بھوکے روزہ رکھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 187 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے۔ اور سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لے۔ بہرحال رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو مومن بندے خوش ہو جاتے ہیں اور ملحدین و منکرین ناپسند کرتے ہیں۔ مومن بندے نماز اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ان کے ہاتھ صدقہ و خیرات کے لیے کھل جاتے ہیں، اور اس طرح سے وہ صلہ رحمی اور حسن سلوک کا ثبوت دیتے ہیں۔ وہ دن میں صبر کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں، لیکن منافقین کھلے عام دن میں کھاتے ہیں اور اپنے دسترخوان سجاتے ہیں، وہ گمراہی اختیار کرتے ہیں اور نہ ہی مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ الحجر میں فرماتا ہے، وہ بھی وقت ہوگا کہ کافر اپنے مسلمان ہونے کی آرزو کریں گے، آپ انہیں کھاتا، نفع اٹھاتا اور جھوٹی امیدوں میں مشغول ہوتا چھوڑ دیجئے، یہ خود ابھی جان لیں گے۔ بہرحال صحیحاً کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان میں روزے ایمان و احتساب کے ساتھ رکھے، خدا اس کے پچھلے گناہوں کی مغفرت کر دے گا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک اور رمضان سے رمضان تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان واقع ہوں، بشرط یہ کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ اور نماز کے فرائض کو ترک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور سورہ البقرہ
आयत नंबर 185 में अल्लाह ताला फरमाता है, माह रमज़ान वो है जिसमें कुरान उतारा गया, जो लोगों को हिदायत करने वाला है और जिसमें हिदायत की और हक व बातिल की तमीज़ की निशानियां हैं। तुम में से जो शख्स इस महीने को पाए उसे रोज़ा रखना चाहिए। हाँ, जो बीमार हो या मुसाफिर हो उसे दूसरे दिनों में ये गिनती पूरी करनी चाहिए। अल्लाह का इरादा तुम्हारे साथ आसानी का है, सख्ती का नहीं। वो चाहता है कि तुम गिनती पूरा कर लो और अल्लाह की दी हुई हिदायत पर उसकी बड़ाइयाँ बयान करो और उसका शुक्र करो। बहरहाल इस आयत में माह रमज़ान की फजीलत का जिक्र किया गया है और रोज़ों की फर्जियत का हुक्म दिया गया है। इस तरह से कुरान की फजीलत बताई गई है जिसके ज़रिए तमाम इंसानियत पर हिदायत रब्बानी का फैज़ान आम किया गया है। रमज़ान का महीना एक इम्तियाजी शान रखता है और ये मोमिनीन के लिए तिजारत का ज़माना होता है। अल्लाह ताला ने इस महीने में कुरान नाजिल फरमा कर इसको खुसूसियत और इम्तियाज बख्शा है। इस महीने में मोमिनीन पर रोज़ा फ़र्ज किए गए और रोज़े को इस्लाम का एक रुकन करार दिया गया। इसके बगैर दीन की तकमील मुकम्मल नहीं। बहरहाल अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रमज़ान के रोज़े 2 हिजरी में फ़र्ज किए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 रमज़ान से रोज़े रखे। हालांकि उन दिनों में शदीद गर्मी होती थी और दिन तवील होते थे। लोग रोज़ों के आदी नहीं थे, इसके बावजूद उन्होंने इसके हुक्म पर कहा, जैसा कि सूरह अल बकरा आयत नंबर 285 में अल्लाह ताला फरमाता है, उन्होंने कह दिया कि हमने सुना और इताअत की, हम तेरी बख्शिश तलब करते हैं ए हमारे रब, और हमें तेरी ही तरफ लौटना है। बहरहाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह रमज़ान को माह सब्र कहा है, क्योंकि इस महीने में बंदा मोमिन रोज़ा नमाज करते हुए सब्र के साथ अल्लाह की इताअत पर कारबंद रहता है। इंसान खाने पीने से, जैसे अल्लाह ताला ने हराम किया है, सब्र करता है और उन तमाम चीज़ों से सब्र करता है जो अफ्तार सोम के मुजिब होती हैं और उसके सवाब व अजर को कम करती है। अल्लाह की तरफ से आयत करदा तकलीफ वो फ़राइज़ पर सब्र करता है। उन तकलीफ दा फ़राइज़ में रोज़ा है, उसको अल्लाह ताला ने अपने बंदे पर फ़र्ज किया है। ये महीना मसावात और बराबरी का है। इसमें मालदार और गरीब मुसलमान अल्लाह ताला के लिए मसावी तौर पर भूखे रहते हैं। मुसलमान तमाम माकुलात व मशरूबात से सब्र करता है ताकि उसे अपने रब की रज़ा और महबूब की खुशनुदी हासिल हो सके। जैसा कि अल्लाह ताला फरमाता है, रोज़ा मेरे लिए है और मैं उसका बदला दूंगा। बहरहाल इस महीने में मोमिन का रिस्क ज़्यादा कर दिया जाता है, यानी भलाइयाँ फैल जाती हैं और रिस्क में खुशादगी हो जाती है। यहाँ तक कि दूसरे महीनों के मुकाबले में इस माह रिस्क वाफिर हो जाता है। चुनाचा गरीब लोग रमज़ान की आमद पर मसरूर व शादा होते हैं, क्योंकि उनका रिस्क बढ़ जाता है। बहरहाल रोज़ा जिस्मानी सेहत का भी बास है और रोज़ा से इंसान के बहुत से अमराज शिफा याब हो जाते हैं, जैसे ज़ियाबेत का मर्ज, जो कि अच्छे खाते पीते लोगों को होता है, क्योंकि इंसानी जिस्म में बहुत से फाजिल स्याह मादा होते हैं और ये रोज़े की वजह से खुश्क हो जाते हैं और एहसाब कभी हो जाते हैं। निज़ाम हज़म में इख्तदाल पैदा हो जाता है और खाने की इश्तहा पैदा होती है और इंसान रोज़ों से वैसा ही तैयार हो जाता है जैसा कि घोड़ा मुसाबिकत के लिए तैयार किया जाता है।
रोज़ा एक ऐसा परहेज है जो जिस्म को सेहतमंद बनाता है। जैसा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और जगह इरशाद फरमाया, हर चीज़ की ज़कात है और जिस्म की ज़कात रोज़ा है। बहरहाल ये हदीस इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत की है। इस हदीस का मतलब ये है कि रोज़ा जिस्म का तज़किया करता है और उसकी नशो नमा में माउन होता है। ये लोगों का ऐनी मुशाहिदा है कि जो लोग नफली रोज़ा रखने के आदी होते हैं वो जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होते हैं और उनकी उम्रें तवील होती हैं। उनको रोज़े में वो कुव्वत व लज्जत हासिल होती है जो नेमत खाने वाले को खाने पीने में नहीं मिलती है। रोज़ेदार को दो खुशियां हासिल होती हैं, एक अफ्तार के वक्त की खुशी जो फौरी तौर पर हासिल होती है और दूसरी खुशी क़यामत के दिन खुदा से मुलाकात के वक्त।